بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایچ ایس کے 1 کے لیسن نمبر 3 کو ریڈ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی گئی دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے پڑھوں گا، کلاس کے تمام جدول پر عمل کروں گا، کلاس کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا، مکمل توجہ سے سبق سنوں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ تو آج کا لیسن کا موضوع ہے نی چاو شما منگز۔ اس میں ہم جانیں گے کہ جب چائنیز میں کسی کا نام پوچھنا ہو تو کن الفاظ سے نام پوچھا جاتا ہے۔ جب اپنے بارے میں بتانا ہو کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، تو چائنیز میں یہ کن الفاظ سے کہا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم سبق کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے نیو الفاظ پڑھیں گے، پھر ان نیو الفاظ کے ذریعے استعمال ہونے والے جملے، کچھ بات چیت پڑھیں گے، پھر کچھ گرامر کے پوائنٹس پڑھیں گے اور آخر میں ٹونز کی مشق کریں گے۔ آئیے نیو الفاظ شروع کرتے ہیں۔ میں ہر نیو ورڈز کو 3 مرتبہ پڑھوں گا۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ان الفاظ کو ٹونز کا خیال رکھتے ہوئے دہراتے جائیے۔ پہلا ورڈ ہے چیاو، چیاو، چیاو۔ اس کا مطلب ہے پکارنا۔ دوسرا ورڈ ہے شما، شما، شما۔ اس کا مطلب ہے وٹ، کیا۔ اگلا ورڈ ہے منگز، منگز، منگز۔ منگز کہتے ہیں نام کو۔ اگلا ورڈ ہے وہ، 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 وہ کہتے ہیں میں، آئی، می۔ ش، 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 ش کا مطلب ہے ہیں یا ہوں۔ اگلا ورڈ ہے لاؤش، لاؤش، لاؤش۔ لاؤش کہتے ہیں استاد کو، ٹیچر کو۔ اگلا ورڈ ہے ماں، ماں، ماں۔ ماں کہتے ہیں سوالیہ جملہ بنانے کو، جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے
माँ इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है श्वेशंग। श्वेशंग 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 कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म को। अगला वर्ड है रन। रन 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 कहते हैं किसी शख्स को, किसी पर्सन को, आदमी को। आगे है चुंगको। चुंगको 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 का मतलब है चाइना। अगला वर्ड है मैको। मैको 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 कहते हैं अमेरिका को। आइए इन तमाम अल्फाज को दोबारा दोहरा लेते हैं। पहला वर्ड है चाओ। चाओ पुकारना। शम्मा। शम्मा क्या। मिंग्ज। मिंग्ज नाम। वो मैं या मुझे। श श है। लाओश। लाओश उस्ताद। माँ माँ सवालिया जुमला बनाने के लिए। श्वेशंग। श्वेशंग स्टूडेंट। रन। रन लोग, पीपल। चुंगको। चुंगको मैको। मैको अमेरिका। जी किस स्टूडेंट्स को ये तमाम अल्फाज ज़ुबानी याद हो गए हैं? जी माशाल्लाह। सुनाएगा कौन? जी आप सुनाइए। माशाल्लाह। जी उमर भाई आप पढ़िए, आप सुनाइए। माशाल्लाह। तो आइए अब इन अल्फाज के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले हम कुछ जुमलों को पढ़ते हैं। खवन ई। खवन कहते हैं टेक्स्ट को। ई मतलब एक, वन। खवन ई टेक्स्ट नंबर एक। नी जाओ शम्मा मिंग्स। आप भी मेरे साथ साथ इन जुमलों को, इन टेक्स्ट को दोहराते जाइए। नी जाओ शम्मा मिंग्स। नी जाओ शम्मा मिंग्स। नी जाओ शम्मा मिंग्स। नी कहते हैं तुम, आपको। जाओ पुकारना। शम्मा क्या। मिंग्स नाम। आपको, आपका क्या नाम है या आपको किस नाम से पुकारा जाता है? इसका जवाब आएगा वो चाओ ली युए। ली युए। लीये यहाँ पर चाइनीज नेम है। आप यहाँ पर अपना नाम या कोई भी नाम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, जैसे वो चाओ आली। वो चाओ आली। नी चाओ शम्मा मिंग्स।
我叫阿里। आगे है 你是老师吗？你是老师吗？你是老师吗？你是老师吗？老师कहते हैं टीचर को। क्या आप उस्ताद हैं? इसका जवाब 我不是老师，我是学生。وہ कहते ہیں میں،不نہیں،是ہوں،老师استاد، وہ میں是ہوں،学生student，我不是老师，我是学生。我不是老师，我是学生。你是老师吗？我不是老师，我是学生。मैं इस पूरे डायलॉग को एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ, आप तवज्जो के साथ इसको सुनिए। 你叫什么名字？我叫李月，我叫阿离。你是老师吗？我不是老师，我是学生。जी कौन सुनाएगा मुझे? जी मुबशिर भाई आप सुनाए। जी माशाल्लाह। जी अगली दो लाइनें आप पढ़ें। माशाल्लाह। अगला डायलॉग है 课文二，课文二 text 2。你是中国人吗？你是中国人吗？ क्या आप चाइनीज पीपल हैं? क्या आप चाइना के रिहायशी हैं या क्या आप चाइना के रहने वाले हैं? 你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？我不是中国人，我不是中国人，我是美国人，我是美国人。我不是मैं नहीं हूँ 中国人 Chinese people， 我是मैं हूँ 中国人 American person। यहाँ पर आप किसी भी मुल्क का नाम जिक्र कर सकते हैं, जैसे 我不是中国人，我是巴基斯坦人，我是巴基斯坦人。मैं एक दफ़ा इस पूरे डायलॉग को पढ़ता हूँ, आप तवज्जो से सुनिए। 你是中国人吗？我不是中国人，我是美国人。जी इस डायलॉग को कौन पढ़ेगा? जी माशाल्लाह आप पढ़िए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए ग्रामर के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। हमने न्यू वर्ड्स में शम्मा पढ़ा, शम्मा का मायना पढ़ा। आइए यहाँ पढ़ते हैं कि शम्मा किस मायना में इस्तेमाल होता है।
शम्मा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप मिसाल देखिए, यहाँ पे पहली मिसाल है 这是什么书। यहाँ पे देखिए, जो कहते हैं दिस, ये 这是什么书，这是什么书，这是什么书। ये शो कहते हैं किताब को। ये कौन सी किताब है, ये क्या किताब है। इसी तरह 这是什么, अगर ये कहना हो कि ये क्या है तो किस अंदाज से कहेंगे 这是什么，这是什么, ये क्या है, 这是什么, ये क्या है। इसी तरह 这是什么菜，这是什么菜，这是什么菜, ये क्या डिश है, ये कौन सी डिश है। इसी तरह 你叫什么名字, आपका क्या नाम है। 你叫什么名字，你叫什么名字。जी, इन तीनों मिसालों को कौन पढ़ेगा? जी आप पढ़िए। जी, टोन्स का ख्याल रखिए। टोन्स अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जुमले का मतलब चेंज हो जाएगा। आप अपना जो आप बात करना चाहते हैं, जो आप बात समझाना चाहते हैं, वो आप बात नहीं समझा पाएंगे। अगर टोन्स का ख्याल आपने नहीं रखा, टोन्स के बगैर पढ़ा, तो जो टोन्स की हमने प्रैक्टिस की, जो उसका तलफ़ुज़ है, जहाँ से वो अल्फाज अदा होते हैं, उसी तरह इनको पढ़ने की कोशिश करें। अगली ग्रामर पढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा श, ये किसी चीज में किसी शख्स के आपस के ताल्लुक को बयान करता है। किसी चीज या किसी शख्स के आपस में ताल्लुक के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर अगर आप मिसाल देखें, पहली मिसाल है थामन। थामन, था कहते हैं वो को, ही वो, और मन जैसे नीमन था, मन लगाने से जमा हो जाएंगे, तो थामन वो सब। थामन श美国人，他们是美国人，他们是美国人, वो अमेरिकन पीपल हैं, वो अमेरिकन पर्सन हैं। दूसरी मिसाल है वो 不是老师，我不是老师। अगर हमने श वाले जुमले को नफी में बदलना हो या इसकी मनफी जुमला बनाना हो, तो श से पहले पो का इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, वो 不是老师, मैं टीचर नहीं हूँ। वो 不是老师, मैं टीचर नहीं हूँ। इस तरह बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आप श को इस्तेमाल करते हुए उनके जुमले बना सकते हैं। जैसे वो 不是老师, वो
शुएशंग हमने पढ़ा, स्टूडेंट को कहते हैं वो शुएशंग शम्मा। यहाँ पर हम तीसरी मिसाल अगर देखें, 这是我朋友这是我朋友这是我朋友 ये मेरा朋友 कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। 这是我朋友 ये मेरा दोस्त है। 这是我朋友 ये मेरा दोस्त है। अगली मिसाल है माँ की। माँ ये जुमले के आखिर में उसको सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जुमले के आखिर में जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल देखें, 你是老师吗 你是老师吗 अगर माँ को हटाकर बात करेंगे तो क्या बनेगा, 你是老师 आप उस्ताद हैं। और माँ को लगाने से जुमला सवालिया जुमले में तब्दील हो गया। तो फिर तर्जुमा क्या बनेगा, 你是老师吗 क्या आप उस्ताद हैं। 你是老师吗 क्या आप उस्ताद हैं। दूसरी मिसाल देखें, 你是老班 लाओपन कहते हैं बोस को। लाओपन 你是老班吗 अगर माँ के बगैर पढ़ेंगे तो 你是老班 लाओपन मीन आप बोस हैं। अगर माँ को लगाएंगे तो जुमला सवालिया जुमले में तब्दील हो जाएगा। फिर तर्जुमा बनेगा, 你是老班吗 क्या आप बॉस हैं। 你是美国人吗 你是美国人吗 क्या आप अमेरिकन हैं। 你是美国人吗 क्या आप अमेरिकन हैं। यहाँ तक हमने इस सबक के न्यू अल्फाज, उसके जुमले और कुछ ग्रामर के पॉइंट्स पढ़े। आइए यहाँ पर टोन्स की मशक कर लेते हैं। हमने जो ओपिनियन टेबल पढ़ा, ओपिनियन चार्ट पढ़ा, उसमें हमने इनिशियल अल्फाज की प्रैक्टिस की। यहाँ पर नक्शे के ज़रिए समझा रहे हैं कि जे, क्यू और एक्स को किस तरह पढ़ा जाएगा। जे को जब पढ़ेंगे तो सिर्फ साउंड जे की आवाज़ आएगी, जैसे ची ची। इसको अदा करते हुए मुंह से आवाज़ तो निकलेगी लेकिन आवाज़ के साथ सांस नहीं आएगी बाहर। ची जैसे यहाँ पे देखें, सिर्फ आवाज़ आ रही है, सांस बाहर नहीं आ रही। जबकि जब क्यू को पढ़ेंगे तो क्यू को किस तरह पढ़ेंगे, छी छी छी। जब छी क्यू को पढ़ेंगे तो आवाज़ के साथ साथ सांस भी बाहर आएगी। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर आवाज़ के साथ साथ सांस भी बाहर आ रही है, जैसे छी छी। और जब एक्स को पढ़ेंगे इसमें भी क्यू की निस्बत सांस कुछ कम बाहर आएगी, जैसे शी शी शी। आप इन अल्फाज की दुरुस्त अदायगी करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने मुंह के आगे हाथ रख के चेक कर सकते हैं कि आवाज़ के साथ साथ सांस बाहर आ रही है या नहीं। यहाँ पर एक रूल बता रहे हैं, एक
قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، پو کی جو اپنی ٹون ہے، جو پو کی اوریجنل ٹون ہے، وہ چوتھی ٹون ہے، لیکن جب پو کے بعد والے جو الفاظ ہوں گے ان پر اگر پہلی، دوسری یا تیسری ٹون آ جائے تو جو پو کی ٹون ہے وہ اسی طرح باقی رہے گی، پو کی ٹون تبدیل نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پر کچھ مختلف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو سنیے۔ جیسے پہلا لفظ ہے پوچھ، پوچھ، پوشنگ، پوشنگ، پوہاؤ، پوہاؤ، پوکھ، پوکھ، پوننگ، پوننگ، پوشیانگ، پوشیانگ۔ جیسا کہ آپ ان مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پو کے بعد جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان تمام پر، جیسے یہاں پر جو پہلے تین الفاظ ہیں اس پر پہلی، دوسری اور تیسری ٹون ہے، اسی طرح یہاں بھی پہلی، دوسری اور تیسری ٹون ہے۔ تو اس سے پہلے جو پو آیا وہاں پر پو کی ٹون تبدیل نہیں ہوئی، پو کی ٹون چوتھی ٹون ہی رہی۔ جبکہ آپ اگر ان الفاظ کو دیکھیں، یہاں پر پو کے بعد جو یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پو کے بعد اگر آخری ٹون آ جائے، پو کی اپنی ٹون بھی چوتھی ٹون تھی، پو کے بعد والے لفظ پر بھی اگر چوتھی ٹون آ جائے تو پھر جو پو کی ٹون ہوگی اس کو دوسری ٹون میں تبدیل کریں گے، جیسا کہ آپ نے الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تین الفاظ ذکر کیے گئے، پو کے بعد ان تینوں پر چوتھی ٹون تھی، تو پو کی ٹون کو ہم نے دوسری ٹون میں تبدیل کر دیا۔ جیسے میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پو شیے، سوری، پو شیے، پو شیے، پور، پور، پوکھن، پوکھن۔ یہاں خالی جگہ ذکر کی گئی، جو آپ نے نیو الفاظ پڑھے، جو جملے پڑھے، ان کو پہلے اچھی طرح سے یاد کیجئے، ان کی پریکٹس کیجئے، کوشش کریں جو ڈائیلاگ ہیں، جو نیو ورڈز ہیں ان کو زبانی یاد کیجئے اور بار بار ان کو استعمال میں لائیے، اس کے بعد اس خالی جگہ کو پور کیجئے۔ یہاں تک ہمارا تیسرا سبق کمپلیٹ ہوا۔ تیسرا لیسن 3 جیشولا، یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ شیشے نیمن زیتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔